Hi guys, welcome back or welcome to the channel. If you don't already know me, my name is Shavi Joshi and I love to make vlogs. That can be vlogs that I make on a daily basis or some reading vlogs because I love reading and I like sharing my personal reading experiences with y'all. So basically today's vlog is going to be about me doing a lot of stuff that I have to do for today. That includes me studying and then I have to even go outside in the evening. If I get my work done by evening, I will be going outside because I have a little task that I have to do outside as well. And I'll tell you what the task is further into the video. But for now, let's just focus on the task that we have to do at hand. The first thing that I have to do is to study. I'm sure most of you don't know this, but I'm just gonna tell you that I am not the best at physics. I'm very weak. Plus, मैंने foundations अपने clear नहीं करे थे, which is another mistake of mine. But we're still trying to work on it. Hopefully, please pray for me, everybody, and comment that Shavi, you can do this. Please encourage me because I get so demotivated when I don't get 2 questions. मतलब मुझे no numerical नहीं होंगे मैं इतना demotivate हो जाती हूँ कि यार मुझसे क्यों नहीं हो रहा ऐसा क्या है मेरे A few inches later. So please encourage me in the comment section please कि Chavi, you can do it. Just believe on yourself and all that thing. Just give me some motivation, guys. So what I'm going to do is I'm going to study my favorite subject, as you can already guess, which is biology, and I will be studying the chapter reproductive health, which is the 3rd chapter in our course. And currently हमने वो chapter start करा है और फिर देखते हैं हम आगे क्या करेंगे. I have to even wash my hair because I have oiled my hair like थोड़ी देर पहले ही मैंने ऑयलिंग करी है बालों की and now I have to wash that as well. Stay tuned for seeing what is going to be my routine for the day. Okay guys, please avoid the face because I have oiled my hair and I look so bad. But now I'm gonna study and that is why I made a glass of cold coffee for me. Yay! And I'm so proud of myself. Actually, I love cold coffee, but I didn't master the technique of making one, okay? I didn't know how to make cold coffee. लेकिन मैंने finally after at least 1.5 years I understood what is the technique to make cold coffee because I know आप लोग सोच रहे होगे like what 1.5 year for a cold coffee इतना भी नहीं आता ऐसे but I couldn't find a good recipe that would suit me the best and I didn't like any of the recipes on the internet. Finally मुझे एक recipe मिली जिससे मैंने बनाया and now I'm a fan of cold coffee. I love cold coffee, but मुझसे बनती नहीं थी. But please do let me know what is the recipe to make it just like the people make it in cafes and outside that are just delicious. तो अगर आपको पता है तो please comment in the comment section because I really want to know what is the technique behind making this cold coffee. I just had a bath. As you can see, my hair is wet because I washed my hair today and I'm gonna do my skin routine which I do on a normal basis and I'm going to be telling you what is the thing that I have to do जो मैं बाहर जाके करने वाली थी. So basically what I'm going to be doing is मेरे पास कुछ टाइम से 2 या 3 कुर्तियाँ रखी हुई हैं. So I have 2 of I have a lehenga. So this is basically a skirt and blouse. You can say lehenga types, a casual lehenga or something. I don't know what you call it. And ये मैंने दिया था वृंदावन से last year. Okay, I went to वृंदावन last year and मैंने अभी तक उसे alter नहीं कराया because उसका जो blouse है, the blouse is extremely loose because it was a free size, but I didn't alter it. If I have not altered it, I can't wear it, and if I can't wear it, I just can't wear it. So I have to get that altered. Other than that, in the month of I think November, I got a court set. It's basically a hot pink color court set जो शादी वगैरह में पहनने के लिए यूज़ हो सकता है. And it has really long sleeves and it has a different kind of sleeves. So it's like sleeves but it's super long. I also have a kurta. Basically it's the fabric and I have to get it stitched. So it's a little baby pink color, peachy color fabric which I will have to get it stitched so that I can use it.
By the way, my mom got this itra, which is rose scented. This is rose scented or whatever you can call it. तो मैं अभी इसको try करने वाली हूँ because my mom got it and I don't usually use itra or something like that, but क्योंकि आया है तो why not? Why not use it? अच्छा, also tell me what are the places जहाँ पे इत्र लगाया जाता है. I only know that कान के पीछे and I think on the wrist at your pulse point. Other than this, where it is used, please do let me know. So yeah, so basically that is what we have to do right now. And let me just quickly show you the clothes which I talked about. A few moments later. So these are the things that I have to get stitched or altered. There are कुछ चीज़ें stitch करानी है, कुछ चीज़ें just adjustments कराना है. The first is this one. Now this consists of 2 kurtis. एक मेरी है, एक मेरी मम्मी की है. So basically the pink one, this one is mine. It's a very soft fabric and ये पूरा suit है. It's a complete set. It has a dupatta, it has a pant and it also has this kurta. This is another kurta which is not mine, it's my mother's. So this is basically dark blue, you can say. I think that's a very deep blue and वही same चीज़ है इसमें भी. It has a kurta, a dupatta and a pant. So this is basically the fabric and this is the skirt. Okay, so this is the skirt. There is a blouse in this. This is the blouse. This is the skirt and there's a dupatta in this. I got this from Vrindavan last year during May. और फिर मैंने ये कपड़ा ले लिया था. But I didn't get it altered from that time. इसलिए काफी समय से मेरे wardrobe में पड़ा हुआ था. And the last thing is this cord set. So basically it has something like a kurti on top. I don't know what it is. It's not a kurti, but it has super long sleeves and it has a bottom which has a very wide end and it's flared. I don't know how to explain this. So these were the 3 things that I have to stitch. Hi guys, so as you have seen in my last clip, हम लोग जाने वाले थे बाहर टू द टेलर बट कल हम नहीं गए क्योंकि टेलर वॉज क्लोज्ड एंड वी कॉल्ड हिम एंड ही सेड कि आज तो मैं दुकान में नहीं बैठा हूँ एंड आई एम गोइंग होम एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. तो आप क्या करना, कल आ जाना, मुझे कल फ़ोन करके पूछ लेना कि क्या सीन रहेगा, कि आप आओगे या नहीं करके. तो हमने आज अब फ़ोन करा है एंड अभी तो वो यही कह रहा है कि वो है. सो आई एम जस्ट गेटिंग ड्रेस्ड अप फॉर दैट. Along with this, I have to also make a video. A few days ago, one of you, my subscribers, commented on one of my videos. If you're still watching it, please comment it in this video too. And they asked me to show them my small little library. तो मैं वो video जो है वो आज shoot करने वाली हूँ. By the way, can we just take a moment to appreciate the look my hair has? Like कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बाल अभी. Oh my god. नजर ना लगे guys, put the नजर emoji in the comments जिससे कि नजर ना लगे, because अभी the amount of volume and the beautiness in my hair is just, oh my god, it looks so good. Anyways, so right now I have to also do a little makeup. ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत. So let me just discuss with you one thing. A little story time on what has happened throughout the month of April. As the month of April has already ended, आज 2nd of May है and I want to just share what is the things that happened in the month of April and how was my month throughout, because हमारा 12th का session भी इसी महीने शुरू हुआ था. Now let me just tell you, मेरा ना स्कूल का सेशन जो है वो हुआ शुरू 1 अप्रैल से. ठीक है, when I joined the school like 3 years back, मैंने 9th में ये स्कूल ज्वाइन करा था, तब मैंने ज्वाइनिंग करी थी 10 अप्रैल से. ठीक है, तो इन लोगों का लाइन देखना, जस्ट लुक एट द ग्राफ हाउ इट्स गोइंग, राइट. when I joined in 9th, we joined on the day 10th April. I remember that day very nicely. And फिर हम लोगों ने 10th में ज्वाइन किया था एंड आई थिंक 10th में हमने 7th अप्रैल या 8th अप्रैल को ज्वाइन करा था. ठीक है, फिर आया 11th एंड 11th में हमने 5th of April को ज्वाइन करा था. इस बार हमने 1st of April को ज्वाइन करा. कैन यू सी कि कैसे ये लोग खिसकाते जा रहे हैं, छुट्टियां कम करते जा रहे हैं. लाइक इनको हमारी छुट्टियों से एलर्जी है. एंड गेस व्हाट, अभी जो 11th ग्रेडर्स हैं, बिकॉज दे वर 2 बोर्ड्स दिस ईयर, तो इनके जो स्कूल रीओपन हुए हैं वो पूरे 15 डेज बाद, यानी कि आई थिंक 15th of April से इनका स्कूल रीओपन हुआ. और हमारी बारी में तो बहुत जल्दी बुला लिया था कि चलो बेटा, come to school, no chutti for you and come to school. This is like literally so pure injustice with us कि हमें इतनी जल्दी बुला लिया था, इन लोगों को इतना आराम से बुलाया, बट क्या ही कर सकते हैं. एनीवेज, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है कि मैं 2 चीज़ें एक साथ नहीं कर पाती हूँ. या तो मैं बोल ही लूँगी या मैं काम ही कर लूँगी, मेरे से 2 चीज़ होती नहीं है.
एनीवेज, सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 1 अप्रैल से स्कूल शुरू हो गया था. अब हमारी एक टीचर है, ठीक है, our chemistry teacher has got retired this year, so she's not teaching us anymore, although we do miss her because वो काफ़ी 3 साल चले यार, I'm being taught by her from 3 years, and 3 साल से कोई पढ़ाता तो यार एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उससे, ठीक है. एंड आई वॉज ऑल्सो अटैच टू हर एंड शी इज़ द बेस्ट. नाउ व्हाट कैन आई से फॉर हर, इतनी अच्छी टीचर है, मतलब पढ़ाने लिखाने का तो अलग ही चीज़ है, वो तो अलग ही है, बट उसके अलावा भी बहुत बढ़िया टीचर है वो. शी इज़ सो गुड, शी इज़ सो मोटिवेटिंग. मेरे 11th में मार्क्स, फ्रैंकली आई एम गोइंग टू स्पीक दिस टू यू ऑल, मेरे 10th के मार्क्स अच्छे थे, बट मेरे 11th में मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे. एंड आई रियली डोंट इवन विश टू डिस्कस माई रिजल्ट्स विथ यू बिकॉज इट वॉज सो बैड, इट्स सो एम्बैरेसिंग. लेकिन उन्होंने मुझे डीमोटिवेट कभी नहीं करा, नेवर नेवर नेवर. शी ऑलवेज मोटिवेटेड मी एंड सेड कि यार छवि तुम कर सकती हो, आई नो योर पोटेंशियल, यू नॉट पुटिंग इनफ एफर्ट्स इनटू इट एंड आई नो दैट यू कैन डू इट. मुझे अलग से कभी भी क्लास में ह्यूमिलिएट नहीं करा, हमेशा अलग से ले जाती थी, अलग दूसरे कमरे में, लाइक एक और क्लासरूम में चले गए, वहाँ बैठ के काउंसलिंग करती थी कि छवि आई नो यू कैन डू इट बट यू नॉट एबल टू डू इट, पता नहीं तुम्हारे एफर्ट्स शायद कहीं पे कम हो रहे हैं, जस्ट वर्क ऑन योर थिंग्स. मेरे हाफ ईयर में काफ़ी गंदे मार्क्स आते हैं. उसके बाद उन्होंने मुझे लिटरली एक दिन ऐसे बुलाया, मुझे लगा पता नहीं क्या सीरियस बात करने वाली, ओ माय गॉड इज शी कंप्लेनिंग अगेंस्ट मी और समथिंग लाइक दैट. एंड शी लिटरली टोल्ड मी कि छवि आई नो दैट यू कैन डू रियली वेल बट तुम कर नहीं पा रही हो, तुम्हारे काफ़ी डिक्लाइन हो गए मार्क्स, तो आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन योर स्टडीज एंड दिस एंड दैट. एंड she is literally an angel and she has motivated me so many times. आज भी अगर मैं कोई प्रॉब्लम लेके जाऊँ उनके पास तो आई एम श्योर शी विल मोटिवेट मी एंड शी विल आंसर ऑल ऑफ माई क्वेश्चंस. तो वो चीज़ बहुत ही बढ़िया थी उनकी. एंड दिस ईयर रिटायरमेंट हो गया है जिसकी वजह से अब क्या है, हमें पढ़ा नहीं पा रही हैं. सो शी इज़ नॉट टीचिंग एनी मोर बट शी वॉज अ वंडरफुल टीचर. पर नाउ हमारे एक नए टीचर आ चुके हैं एंड ही इज़ टीचिंग अस केमिस्ट्री नाउ. सो आई जस्ट पुट द लाइनर बिकॉज मुझसे वो 2 काम हो नहीं रहते, या तो मैं बोल ही लूँगी या मैं लाइनर लगा ही लूँगी, दोनों चीज़ें नहीं हो पाएंगी. तो बेसिकली थोड़ा सा ब्लश लगा लेते हैं. तो बेसिकली क्या हुआ, नाउ वी हैव अ न्यू टीचर दैट हैज़ ज्वाइंड इन प्लेस ऑफ आवर ओल्ड टीचर बिकॉज अगेन वो उनका रिटायरमेंट हो गया है एंड एज द नॉर्म्स से अ टीचर कैन नॉट टीच व्हेन शी इज़ रिटायर्ड और ही इज़ रिटायर्ड. तो फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया. तो अभी तो चीज़ें काफ़ी ठीक चल रही है. मतलब एक बैड इंसिडेंट हुआ था मेरे इन नए वाले टीचर के साथ. सो आई एम नॉट गोना एक्सपोज दैट इन दिस वीडियो, मे बी कभी अपकमिंग वीडियोज़ में मैं शेयर करूँ बट इस वीडियो में नहीं करूँगी. बट मेरा उन वाले टीचर के साथ कुछ तो एक पंगा हुआ था और लिटरली उनके आने के 3rd डे पे पंगा हुआ था भयंकर. मेरा आज तक लाइक नेवर एवर एवर हैव आई हैड अ प्रॉब्लम विद अ टीचर. लाइक ऐसे कुछ भी फेस नहीं करा कि मैं टीचर की कंप्लेन कर रही हूँ या मम्मी से कह रही हूँ यार मम्मी. एंड आई क्राइड सो डैम मच ऑन दैट डे. आई विल टेल यू सम अदर डे, आज नहीं, अभी नहीं, बट श्योरली एक दिन मैं बताऊँगी. And I literally cried so much on that day. All of the teachers, actually, if you don't know, my mom is a teacher in the school. So अब होता क्या है, डिस्पर्सल के बाद मैं स्कूल में ही रुकती हूँ. तो स्कूल में रुकने की वजह से क्या होता है कि आई हैव लाइक 40 और 1 hour 20 minutes आई थिंक इन स्कूल. मम्मा का स्टे बैक होता है तो वी स्टे एट स्कूल ओनली एंड मैं वहीं पे अपना काम वाम कुछ कंप्लीट करना होता तो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वैसे ही वेलापंती काटती हूँ. अब हुआ क्या, उस दिन कुछ पंगे हो गए थे एंड मैं इतना इमोशनल मेल्टडाउन हो गया. आई स्टार्टेड क्राइंग बट आई कंट्रोल माई सेल्फ सो मच. मैं मम्मी के पास आई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग सो मच एंड माई मॉम वाज लाइक क्या हो गया, रो क्यों रही हो, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स द इशू. एंड आई कुडंट स्पीक, इतना ज़्यादा मैं रो रही थी, मैं बहुत देर तक बोल ही नहीं पाई. बट फिर फाइनली बाद में सॉर्ट आउट हो गया था वो मैटर. एंड अब मेरे ऐसे अनबन नहीं है उनसे. आई डोंट हैव एनी ग्रेजेस एज वेल. आई होप ही इज़ नॉट हैविंग एनी ग्रेजेस एज वेल. टिल नाउ ही इज़ टीचिंग वेल ओनली. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन टीचिंग एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट. उसके बाद काफ़ी मस्त रहा एंड द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज रियली गुड. तो मतलब ये पूरा महीना काफ़ी क्योटिक भी रहा है, खूब मज़ेदार भी रहा है एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन विद माय फ्रेंड्स. हम लोग लिटरली अपने स्कूल में, देखो हमारे स्कूल में होता है गेम्स पीरियड, ठीक है. तो गेम्स पीरियड में क्या होता है, हम लोग जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम वहाँ ग्राउंड में जाके बैठ जाते हैं. ऑल्दो वी आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू सिट इन द ग्राउंड. या तो हम खेलें या फिर हम लाइब्रेरी चले जाए. बट हम है रेबिलियंस, हम नहीं करते हैं. हम लोग ना खेलते हैं ना हम लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं, हम वहीं ग्राउंड पे पसर जाते हैं. फिर 4 सर आके हमें डांटते कि यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, बैठना अलाउड नहीं है, दिस एंड दैट. बट स्टिल वी सिट देयर. और एक दिन क्या हुआ, हम लोग बैठे हुए थे, रैंडम गेम्स खेल लेते. एंड व्हाट वी डिड इज वी फाउंड अ पेड़
जो जिसमें आम लगे हुए थे। अब वो आम भी नहीं, अमियाँ होती हैं, वो छोटी वाली, और वो इतनी छोटी छोटी सी। और हम लोगों ने क्या करा, हम सब लड़कियां थी वहाँ पे, तो एक मेरी फ्रेंड खुराफाती दिमाग वाली, उसने कहा चलो चलो आम तोड़ते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आम तोड़ते हैं, एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ईट अमिया यार। तो वो तोड़ने लगी, फिर उसने तोड़ा एक, फिर उसने खाया, बट आई वॉज सो कॉन्शियस कि यार खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मैं कहा यार खा ही लो, क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। तो हम लोगों ने उस दिन खूब सारे आम तोड़े, फिर हम लोगों ने खाए वो आम। ओवरऑल द मंथ वॉज वेरी फन, बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता चल रही हैं इस साल। एंड इट्स अ लिटिल सैड एज वेल बिकॉज दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ 12th। इसके बाद तो हम कभी भी 12th में नहीं आएंगे, हमारा स्कूल लाइफ इज प्रैक्टिकली ओवर। इस साल हमारी 2 चीज़ें भी होने वाली हैं, दैट इज टैलेंट हंट एंड फेयरवेल। फेयरवेल तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बट टैलेंट हंट इज समथिंग विच आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम हियर। टैलेंट हंट इज बेसिकली अ फंक्शन इन आवर स्कूल विच हैपन्स, जिसमें आप बेसिकली अपना टैलेंट को डिस्प्ले करते हो, ठीक है। 3-4 राउंड्स होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन राउंड, तो आपको 1 मिनट या कुछ टाइम के विद इन अपना इंट्रोडक्शन देना है, एंड इट शुड बी प्रॉपर विद गुड इंग्लिश एंड फ्लुएंसी। देन यू हैव अ स्पीच राउंड, वी हैव टू गिव अ स्पीच ऑन अ सर्टन टॉपिक, और अगेन वही चीज है, लिमिटेड टाइम होगा, अच्छे से फ्लुएंटली बोलना होगा। देन आफ्टर वी हैव द थर्ड राउंड विच इज द मेन राउंड, एंड इट इज कॉल्ड टैलेंट राउंड। इसमें हम अपना टैलेंट को शोकेस करते हैं। एंड देन वी हैव आवर लास्ट राउंड विच इज द फोर्थ राउंड, विच इज बेसिकली सम क्वेश्चन राउंड। तो वो कुछ जजेस आते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको उनको आंसर करना होता है। फिर अगर आपने आंसर कर दिया तो आप लास्ट राउंड तक चले जाते हैं, फिनिश ऑफ हो जाता है, आप जीत जाओगे। मतलब फिर ऐसे 3 लोग होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेसेस मिलते हैं, फिर उनको कुछ कुछ ट्रॉफिया वगैरह कुछ मिल जाता है, मेमेंटो वगैरह। तो वो चीज़ एक होती है। एंड लास्ट टाइम हमने होस्ट कराई थी, तो बेसिकली फेयरवेल एंड टैलेंट हंट आर दीज 2 थिंग्स दैट वी हैव टू होस्ट। और हमने लास्ट टाइम होस्ट कराई थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, और इस साल हमारा भी होगा। तो वो भी चीज़ एक है हमारे दिमाग में कि वो भी है, तो वो है। फिर फेयरवेल होगी, फिर ऑब्वियसली बोर्ड्स तो होंगे, फिर बोर्ड्स के बाद नीट वगैरह, जिसको जो देना है, किसी को जेई देना है तो जेई, किसी को नीट देना है तो नीट। तो वो सब चीज़ें भी दिमाग में चल रही है। बट ओवरऑल द मंथ वॉज रियली रियली एक्साइटिंग, एंड इट वॉज सो एंथुजियास्टिक। अच्छा सा मंथ गया, एंड आई होप कि मेरा पूरा साल बहुत अच्छा जाए, बिकॉज अगेन इट इज़ द लास्ट ईयर एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल अप थिंग्स। ऑल्सो इस मंथ 2 बर्थडेज में मैं गई हूँ, तो बेसिकली एक का आपने व्लॉग तो देखा ही था, एंड दूसरा बर्थडे एक और मेरी फ्रेंड का था, जो हम रिसेंटली आई थिंक 26 तारीख को गए थे, एंड दैट वॉज ऑल्सो रियली फन। उसने घर पे ही करा था सेलिब्रेट, तो उसमें मैंने ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाए हैं, तो मैं नहीं डाल पाई किसी भी ब्लॉग में। सो दैट इज़ ऑल। So now I'll just not yap anymore and get started with all the things. But I'll see you in my next clip because अब मुझे दूसरा वीडियो बनाना है. So bye bye. Okay guys, so I just finished making my video जो मुझे बनाना था, and a big shout out to that subscriber who inspired me to make this video. You will be seeing this. I think अभी तक वो already posted हो चुका होगा चैनल में. It's basically a mini library tour which I have, although मेरे कोई बहुत बड़ी library नहीं है. But let me just show you the aftermath of that video. Look at the amount of mess that I've created. All of the books are out of their shelves. इधर भी पड़ी हुई हैं, इधर भी पड़ी हुई हैं, and now I have to put them back into the shelves, but I'm procrastinating it right now. तो अभी मैं नीचे जाने वाली हूँ, and I'm so sweaty. पता है इतनी गर्मी हो रही है ऊपर, and I don't even have a AC in my room. तो मैं नीचे जाने वाली हूँ. I'm gonna go and change my clothes into something comfortable, and then I will be editing that video because मुझे वो video भी edit करना है. And this I'll see later on. अभी मेरे अंदर इतना stamina नहीं है to clean all of this. So I'm just going to go downstairs and I'm going to edit the video. I'm going to change into something comfy so that I do not feel hot. Guys, so this was the end of the video. I forgot to vlog the little portion of me going outside. तो मैं भूल ही गई वो चीज़ करना. But I'm gonna wrap up the video here itself because और कुछ बचा नहीं है आज के लिए, and अब मैं आराम से जाऊँगी सोने के लिए. तो I'll see you in my next one, and if you have not subscribed to my channel, don't forget to subscribe to my channel, and if you like the video, put the thumbs up button too. Along with this, push the bell icon because you'll get notified whenever I post a new video so that you don't miss out on what I'm posting, and I'll be seeing you in my next one. Bye bye. Till then, take care.